Hello friends, I am Purnima, PGT Computer Science, Kendra Vidyalaya SSB Gwaldam, Dehradun region. In the previous videos, we learnt about how to conduct online classes using Google Meet from your mobile phone or from your laptop or computers. Today we are going to discuss how to design and conduct online test, as teaching is not that effective without conducting test. So I'm using two tools for conducting online tests. One is TestMoz and the other is obviously Google Forms. I'm going to discuss both these options one by one. Personally speaking, for me, when conducting tests, two things matter a lot. The number of times a student can take the test and the time limit. In conducting online test, these two things matter a lot to me. So my test designing will be centered around these concepts only. So let's start. The very first thing that I am discussing here is obviously Google Forms. You can see here I have my browser open. In the search bar I am going to type Google Forms. I am going to select this first link from here, and as I am not a G Suite member, so I'll take this personal, go to Google Forms. And right now I'm not having any form design so far. I'm going to select this blank template. Now it is a form so far, and form can be used for multiple things, for your surveys, for taking feedback, for any interview sort of, or anything. When designing test, I need to change the settings for this form. In the settings tab, I am having three tabs: general, presentation and quizzes. The very first thing and the most important thing that you need to do when designing a test using Google Forms is that switch on this button, make this a quiz. When you make this a quiz, then only it will be your test, otherwise it will be a normal form, right? These are the options for your checking. If you are taking one word answer questions or multiple choice questions, you can select for automatic checking of your test, and in that case you can select this first circle. I am going to design a descriptive test, so in case of descriptive test you need the manual review, so I am checking it. This is up to your choice. Respondent can see missed questions or not. If you want, you can check it. If you do not want, you can simply uncheck it. Coming to the presentations tab, show progress bar. Let's suppose I have designed 10 questions and I want to let the test taker know how many questions he has attempted, how many are left. So I'm going to check it. It will show a progress bar kind of on the test window. Yes, I want to shuffle the questions also. That will be very much like designing different sets for the same test. Show link to submit another response. I do not want this because I do not want the user to take multiple attempts to the same test. Confirmation message, you can select whatever you want to give. Otherwise, the default is your response has been recorded. I am going to change it. Test submitted सक्सेसफुली. ओके, फिर हम जनरल सेटिंग्स पे आ जाते हैं. इन द जनरल सेटिंग्स, कलेक्ट ईमेल एड्रेस, ये मैंने मैंडेटरी कर दिया है. रिस्पॉन्स रिसिप्ट्स, ये आप चाहो चेक कर लो, ना चाहो ना चेक करो. रिस्पॉन्स रिसिप्ट को अगर आप चेक करते हो तो द यूज़र विल गेट एन एक्नॉलेजमेंट के टेस्ट सबमिट हो गया है. ठीक है, आई एम गोइंग टू अनचेक दिस. लिमिट to one responses. As I told you earlier also, to me this thing matters a lot when taking online test. So I am going to check it. You can select as per your choice. Edit after submit, मतलब जिसने टेस्ट सबमिट किया है वो सबमिट करने के बाद अपने टेस्ट को एडिट कर दे, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ. So I am not going to check this because then it will not be a test anymore. I am going to save these settings.
Now here I am getting the questions window kind of, and I can select the type of question I want to give. I can give short answer question, I can give paragraph questions, I can give multiple choice question, checkbox, multiple options are there. जो मेनली यूज़ होने वाली ऑप्शंस है वो हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या पैराग्राफ क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो लेट्स से मैंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, एंड इन दिस आई एम टाइपिंग माई क्वेश्चन. लेट्स से illustrate in brief about mutable and immutable data types of Python, giving suitable example. Right. एंड अच्छा, अगर आप उसको क्विज नहीं बनाते तो आप फिर पॉइंट्स नहीं सेट कर सकते थे. नाउ आई कैन सेट पॉइंट्स फॉर माई क्वेश्चन. लेट्स से दिस इज़ ऑफ 2 मार्क्स, या चलो 3 मार्क्स का कर लेते हैं. डन. दिस इज़ माई फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. सो मैं ये रिक्वायर्ड फील्ड को ऑन कर दे रही हूँ. Now answer to this question is compulsory. Adding another question. अब हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना लेते हैं, एंड आई एम गोइंग टू ऐड इमेज टू दिस क्वेश्चन. ब्राउज किया. यू कैन ऐड इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर और कैमरा और URL और फोटोज, गूगल ड्राइव, मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर. आई एम एडिंग इट फ्रॉम माई कंप्यूटर ओनली. तो ब्राउज़ किया. ऑन द डेस्कटॉप आई एम हैविंग दिस इमेज. ये मैंने अपलोड कर दी. ये इमेज यहाँ पे आ गई, एंड नाउ आई एम सेइंग नेम द पर्सन इन दिस इमेज. फाइन. एंड आई वांट टू मेक इट, लेट्स से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ऑप्शन 1 मैंने ऐड कर दिया. ऑप्शन 2 हमने ऐड कर दिया. ऑप्शन 3 में and option 4 is none of these. Now let the student answer, and I am going to set points for this question. So this is how you can add image to your questions as well. This is my second question done. I am going to design one more question. Like you added image, you can add videos also to your question. You can add you can import question from other test. Let's suppose आपने पहले भी कोई टेस्ट डिज़ाइन किया है और आप चाहते हो कि वहाँ से मैं कुछ क्वेश्चंस को, आई वॉन्ट टू रिपीट दोज क्वेश्चंस एज दे वर वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं अपने सेकंड टेस्ट में भी उनको रिपीट कर रही हूँ, तो मैं इम्पोर्ट कर सकती हूँ क्वेश्चन को. दैट विल सेव माई टाइम ऑफ डिज़ाइनिंग द टेस्ट, राइट. And you can add title and description to the question. This is rarely used. You can add multiple sections. जैसे कि हम इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश का कोई टेस्ट होता है उसमें ग्रामर का अलग सेक्शन होता है, लिटरेचर का अलग होता है, और राइटिंग रीडिंग अलग अलग सेक्शंस होते हैं. सो दैट वेज आई कैन मेक मल्टीपल सेक्शंस ऑल्सो. वो आप यहाँ से कर सकते हैं. एंड यू कैन सेलेक्ट, जैसे सपोज मैंने एक, चलो सेक्शन ऐड कर लेते हैं. ये सेक्शन 2 ऑफ 2. अब मेरे पास 2 सेक्शंस हैं. एक ये सेक्शन है मेरे टेस्ट का और एक ये सेक्शन है. एंड आई वांट टू ऐड दिस क्वेश्चन टू माय सेकंड सेक्शन, राइट, बिकॉज दिस इज़ जीके. तो चलो हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और अपने सेकंड, अब ये देखो ये सेकंड सेक्शन में आ गया है मेरा. और सेक्शन का नाम दे देते हैं हम, चलो, जनरल अवेयरनेस. फाइन. डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, अवॉइड करना चाहें अवॉइड कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया एक. चलो फिर हम इसको क्वेश्चन बना ही लेते हैं. क्लिक हो गया होगा मुझसे गलती से, सॉरी. तो इसको हम पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन बना लेते हैं. 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर डिज़ाइन करके दिखा दिए. सो माई सेकेंड क्वेश्चन इज़ गोइंग टू बी राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू check if a given
number is palindrome or not. ठीक है, and I'm going to add points to this. ये मेरा 4 नंबर का क्वेश्चन है. सो आई एम डन विद इट. ये मेरा टेस्ट डिज़ाइन हो गया. यहाँ पे मैंने आपको सेक्शन भी ऐड करके दिखा दिए, इमेज भी ऐड करके दिखा दी. मैंने पहले से कोई टेस्ट डिज़ाइन नहीं कर रखा है, तो सॉरी मैं इंपोर्ट क्वेश्चंस करके नहीं दिखा पा रही हूँ. बट इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई इट, और आप बहुत इजीली कर लोगे, मैं जानती हूँ. अगर मुझे टाइम लिमिट नहीं सेट करनी है तो आई कैन सिंपली सेंड दिस क्वेश्चन टू दिस टेस्ट टू माई स्टूडेंट्स नाउ. चलो हम टेस्ट का नाम भी चेंज कर लेते हैं एक बार. दिस इज़ बिकॉज आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग टू यू, तो मैंने इस टेस्ट का नाम कर दिया डेमो टेस्ट. यू कैन सेलेक्ट वॉट एवर यू वॉन्ट. इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड डिस्क्रिप्शन टू इट, यू कैन ऐड, और यू कैन सिंपली अवॉइड इट. तो अगर आपको टाइम ऐड नहीं करना है अब यहाँ पे, या कुछ भी और चेंजेस नहीं करने हैं, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस सेंड बटन, और फिर आपको एक लिंक मिल जाएगा. उस लिंक से आप बच्चों को ये टेस्ट सेंड कर सकते हो. बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, टू मी टाइम लिमिट मैटर्स अ लॉट व्हेन डिज़ाइनिंग अ टेस्ट. तो अब हम टाइम लिमिट ऐड करेंगे इसमें. इसी टेस्ट में मैं टाइम सेट करूँगी. लेट्स से मेरे को 15 मिनट का ये टेस्ट रखना है, तो वो हम कैसे करेंगे. आई विल क्लिक ऑन दिस 3 बटन्स. एड-ऑन्स पे जाऊंगी, एंड फ्रॉम हेयर आई विल ऐड दिस timify.me पे क्लिक करूंगी और इसको इंस्टॉल करूंगी. कंटिन्यू. सेलेक्ट द ईमेल आईडी जिससे मेरे को करना. अब ये ईमेल आईडी सेम होनी चाहिए जिस ईमेल आईडी से आप टेस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी फिर. ओके, नेक्स्ट एंड डन. आई एम डन. अब ये मेरा जो एड ऑन था, ये मेरे एड इंस्टॉल हो गया है. आई एम क्लोजिंग दिस. अब यहाँ से आप एड ऑन्स पे क्लिक करेंगे, एंड यू विल क्लिक ऑन timify.me. कॉन्फ़िगर. इसके अलावा मैं एक अलग टैब में एड्रेस बार में आई एम गोइंग टू टाइप timify.me. फाइन. अब यहाँ से मैं करूँगी enable timify.me फॉर दिस फॉर्म. अनेबल हो गया, राइट. इस फॉर्म का नाम है अनटाइटल फॉर्म. हम चलो चेंज कर लेते हैं, डेमो टेस्ट ही कर देते हैं. फाइन. ऑटो सेव होता है यहाँ पे, आपको कुछ भी सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है. अब मैं timify.me पे जाऊँगी. ये देखो, जो जैसे ही मैंने यहाँ से अनेबल किया, तो ये जो मेरा फॉर्म था, ये फॉर्म मेरा timify.me पे जाके यहाँ विजिबल होने लग गया है. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस, एंड आप व्यू करना चाहो फॉर्म को तो व्यू कर सकते हो यहाँ से. ये देखो, ये पूरा फॉर्म मेरा जो है, ये देखो, ये एड्रेस सॉरी प्रोग्रेस बार भी हमारा आ रहा है, जैसे मैं बोल रही थी आपको. ठीक है. ये मैंने सारी फील्ड्स कंपलसरी कर दी थी, तो मेरे को इनमें वैल्यूज़ डालनी ही पड़ेंगी, उसके बिना ये आगे मूव ऑन नहीं करेगा. बट मतलब यहाँ से आपका एक प्रीव्यू हो रहा है, ये आपका टेस्ट. यू कैन प्रीव्यू इट फ्रॉम हेयर. ठीक है. तो ये एक सेक्शन मेरा एक जगह डिस्प्ले हो रहा है. लेट्स से, चलो मैं इसमें वैल्यूज़ डाल देती हूँ. ठीक है. और यहाँ पर भी मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, नेक्स्ट किया. नाउ आई एम गेटिंग टू द सेकेंड सेक्शन. अब मुझे नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे दिख गया है, और मैं वैल्यू सेलेक्ट करती हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सबमिट. ओके. ये मेरा शायद एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड हो गया है. लेट इट बी. आपको आइडिया हो गया कि ये किस तरीके से मैंने टेस्ट डिज़ाइन किया, और किस तरीके से अब मुझे टाइम लिमिट इसमें ऐड करनी है. तो आई विल क्लिक ऑन कस्टमाइज, एंड 60 मिनट्स का नहीं करना मेरे को.
एक मिनट, आई क्लिक ऑन क्रिएट टेस्ट. हाँ, यहाँ से आप टाइम ड्यूरेशन उसकी सेट कर सकते हैं. सो लेट्स से मैं 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रख रही हूँ इसके लिए. एंड देन फ्रॉम हेयर यू कैन टाइप द, अगर आपके एड्रेस बुक में मतलब कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट में ईमेल आईडीज़ एडेड हैं तो आप सिंपली वहाँ से ऐड कर सकते हो. नहीं तो यू नीड टू टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको आपको यहाँ से टेस्ट सेंड करना है. लेट्स से मुझे इस ईमेल आईडी को सेंड करना है. एंड ऑटो क्लोज द फॉर्म व्हेन टाइम ओवर. अगर मैं इसको चेक करती हूँ तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, आपको बच्चे को बताना पड़ेगा दैट ही नीड टू कीप ट्रैक ऑफ द टाइम एंड सबमिट इट अकॉर्डिंगली. अगर बच्चा गलती से सबमिट नहीं कर पाता बिफोर द 15 मिनट्स आर ओवर तो वो रिस्पॉन्ड ड्रॉप हो जाएगा, मतलब वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ऑटो सबमिट नहीं होगा उस केस में. ठीक है. इफ़ आई वॉन्ट टू हाइड द टाइमर आई कैन हाइड इट, लेकिन वो प्रीमियम प्लान्स में है तो मेरा तो टाइमर शो होता रहेगा और मैं चाहती भी हूँ कि शो होता रहे. दैट इज़ गुड. आफ्टर सबमिशन ये जब ही होगा, ये अलाउ टू व्यू क्विज स्कोर एंड रिजल्ट आफ्टर सबमिशन ये तभी होगा जब मैंने मैनुअल चेकिंग ना रखी हो, ऑटोमेटिक चेकिंग रखी हो. तो वो मैं नहीं कर रही हूँ अभी. तो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट इट. अब मुझे URL जनरेट होके मिल गई. 15 मिनट का टेस्ट है, ऑटो क्लोज है और इस ईमेल आईडी के लिए मेरे को ये URL जनरेट होके मिल गई है. ठीक है. आई विल कॉपी द URL एंड आई कैन सेंड दिस URL टू माई स्टूडेंट्स थ्रू वॉट एवर मीडियम आई वॉन्ट. मैं व्हाट्सएप पे सेंड करना चाहूँ व्हाट्सएप पे कर लूँगी या जैसे भी कर लूँगी. ठीक है. अभी क्योंकि इट इज़ माई ईमेल आईडी ओनली और मैं अपने ही कंप्यूटर पे हूँ तो मैं उस URL को यहाँ सीधे से टाइप कर रही हूँ एंड आई एम क्लिकिंग ऑन एंटर. ये मेरे को स्टार्टिंग में मैसेज मिल गया दैट दिस इज़ द डेमो टेस्ट फॉर जो ईमेल आईडी थी वो 15 मिनट का है. द फॉर्म हैज यू हैव अटेम्प्टेड टू ओपन हैज़ टाइम लिमिटेशन, क्लिक द बटन बिलो व्हेन यू आर रेडी. सो नाउ आई एम रेडी, आई एम ओपनिंग द फॉर्म. राइट. यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देते हैं हम. एंड देन राइट प्रोग्राम इन पाइथन. अब देखो मेरे क्वेश्चंस शफल हो गए ये क्योंकि मैंने सेटिंग्स में चेंजेस किए थे ये वाले, तो मेरे क्वेश्चन शफल हो गए ऑटोमेटिकली. फाइन. ये मेरे को प्रोग्रेस बार भी नज़र आ रहा है यहाँ पे. मैंने प्रोग्राम लिख दिया कुछ भी. ओके. एंड देन इलिस्ट्रेट इन ब्रीफ अबाउट म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, ये भी मैंने आंसर कर दिया. एनीथिंग. मैं अभी वीडियो लेंथी नहीं करना चाहती तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ. सॉरी फॉर दैट. और ये भी मैंने आंसर कर दिया. एंड नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन. ये देखो ये मेरे को यहाँ पर टाइमर भी शो हो रहा है कि मेरे पास टाइम कितना बचा हुआ है. तो अभी मेरे पास बहुत टाइम है. ओके. लेट्स सबमिट. टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली. ठीक है. नाउ आई कैनॉट अटेम्प्ट दैट टेस्ट अगेन. एक बार आपको करके दिखा देती हूँ. URL मैंने कॉपी कर रखी थी, मैंने पेस्ट की और अब अगर मैं उसको अटेम्प्ट करना चाहूँ तो सॉरी लिंक इज़ नॉट फाउंड और हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड, क्योंकि मैंने सेट किया था कि आई कैन अटेम्प्ट द टेस्ट ओनली वंस. ठीक है. अब मैं अपने फॉर्म्स पे जाऊंगी. अब इसको हम क्लोज कर देते हैं. आई विल गो टू माय फॉर्म्स. ठीक है. और यहाँ से मैं रिस्पॉन्स, देखो रिस्पॉन्सेज पे अब इधर 1 आने लग गया है तो मैंने रिस्पॉन्सेज पे क्लिक किया. 1 रिस्पॉन्स मेरे पास आया है. किसका रिस्पॉन्स आया? लेट्स सी. पूर्णिमा का रिस्पॉन्स आया है. ओके. आई वॉन्ट टू सी कि क्या आंसर्स दिए. तो ये तो देखो दिख भी रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने ये आंसर दिया, सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर दिया, थर्ड क्वेश्चन का मैंने जो भी थर्ड क्वेश्चन का ये वाला आंसर दे दिया मैंने, अमित शाह. ठीक है. तो मेरे को यहाँ पर भी रिस्पॉन्स दिख रहा है. अदरवाइज सॉरी इस पर क्लिक करके भी मैं देख सकती हूँ और यहाँ से मैं इसको मैनुअल चेकिंग इसकी कर सकती हूँ एंड आई कैन स्कोर द result and share it with my students. So this is how you can take online test using Google Forms. Coming to the next option, that is TestMoz. तो उसको भी एक बार देख लेते हैं. testmoz.com is a website
अब देखो गूगल फॉर्म्स के साथ लिमिटेशन क्या थी, अगर आपने नोटिस किया हो, आई कंपल्सरीली नीड द ईमेल आईडी ऑफ स्टूडेंट्स टू कंडक्ट द टेस्ट। नॉट नेसेसरी है जीमेल आईडी, बट कोई ना कोई ईमेल आईडी मेरे को चाहिए। अगर बच्चों की ईमेल आईडी नहीं है तब हम टेस्ट कैसे कंडक्ट करें? हो सकता है ना कि क्लास में सब बच्चों की ईमेल आईडी आपके पास ना हो, तो यू सिंपली टाइप दिस testmoz.com in your address bar, enter. Now this is the home page of your testmoz website, और इसका पेड वर्जन भी है, अनपेड वर्जन भी है। मैं अनपेड वर्जन ही यूज़ कर रही हूँ, मेरा काम उसमें चल जा रहा है, जो ऑप्शंस मुझे चाहिए मुझे मिल रही हैं। सो लेट्स बिल्ड अ टेस्ट, टाइप द नेम ऑफ द टेस्ट, लेट्स से मैं ट्रायल टेस्ट ही कर रही हूँ, एंड देन चूज़ अ पासवर्ड, 1 2 3 मैंने कर लिया पासवर्ड, फाइन, एंड देन क्रिएट टेस्ट। नाउ ये यहीं पर शो कर रहा है कि आपके क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे टू डिज़ाइन दिस टेस्ट। तो सबसे पहले आपको इस पेज को बुकमार्क कर लेना है। बुकमार्क करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाद में आपको यही वाला पेज एक्सेस करना होगा। अगर आप बुकमार्क नहीं करते हो तो ये जो है इसको सेव कर लो, कहीं पे कॉपी पेस्ट कर लो, बट बुकमार्क कर लो, दैट विल बी मच बेटर। फिर हम सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स एडजस्ट करेंगे। अब सेटिंग्स में आपको सबसे पहले डिस्प्ले सेटिंग्स मिल रही हैं, आप जो भी व्यू लेना चाहें वो ले सकते हैं यहाँ से, फाइन। देन इन द क्वेश्चन सेटिंग यू आर हैविंग शो ऑल द टेस्ट क्वेश्चंस ऑन वन पेज, यू कैन चूज एज पर योर चॉइस। सारे क्वेश्चंस एक पेज पे करने हैं या एक पेज पे एक ही क्वेश्चन करना है, शो वन क्वेश्चन पर पेज, इट इज़ अप टू यू। अलाउ द स्टूडेंट्स टू जंप अराउंड टू डिफरेंट क्वेश्चंस इन द टेस्ट, चलो ठीक है हम अलाउ कर देते हैं, आप ना अलाउ करना चाहें ना अलाउ करें। आफ्टर ईच क्वेश्चन इज आंसर्ड इंडिकेट इफ द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स वॉज करेक्ट और इनकरेक्ट, ये मल्टीपल चॉइस में ही पॉसिबल हो पाएगा। डिस्प्ले द करेक्ट आंसर, वो मुझे नहीं करना है क्योंकि ये मेरा टेस्ट है। शो द एक्सप्लेनेशन, ये सब आप पढ़ के ही समझ जाओगे कि ये ऑप्शंस किस लिए हैं, मैं इनको ज़्यादा छेड़ नहीं रही हूँ। रेंडमाइज द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ड्यूरिंग द टेस्ट, दिस इज़ फॉर जगलिंग ऑफ योर क्वेश्चंस। तो मैं इस ऑप्शन को हमेशा ऑन ही रखती हूँ, आपने देखा गूगल फॉर्म्स में भी मैंने इसको ऑन किया था। Then in the review settings you are having score, test outline, indicate if the response was correct or incorrect, ये सब भी you can choose as per your choice। अब आ जाते हैं हम एक्सेस कंट्रोल पे। एक्सेस कंट्रोल में ये जो ऑप्शंस हैं ये तो पेड वर्जन में अवेलेबल हैं, सो मैं इनको नहीं टच कर रही हूँ। इन द अनपेड वर्जन आई एम हैविंग द हाउ मेनी टाइम डू टेस्ट टेकर्स हैव टू कंप्लीट द टेस्ट। तो लेट्स सपोज मेरे टेस्ट टेकर को 15 मिनट मिलेंगे टेस्ट कंप्लीट करने के लिए। हाउ मेनी टाइम कैन समवन टेक योर टेस्ट, तो एक बार में एक ही मतलब एक यूज़र जो है वो एक ही बार टेस्ट ले सकता है, तो वो भी मैंने सेट कर दिया। अब ये डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा टेस्ट टेकर से, तो वो एंटर योर नेम है। मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकती हूँ। एंटर योर रोल नंबर करना चाहूँ, लेट्स सपोज रोल नंबर कर दिया मैंने, ठीक है। अब वो रोल नंबर एंटर करेगा। देन ब्राउज़र फंक्शनैलिटी, ये सब इतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, जो मेन जो था वो ये था, एटलीस्ट फॉर मी। सो आई एम गोइंग टू सेव दीज सेटिंग्स। अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चंस पे आ गई हूँ। नाउ आई विल इंसर्ट क्वेश्चंस, एंड हेयर ऑल्सो यू आर हैविंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस भी दे सकते हो, ऐसे टाइप भी दे सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कुछ ऑप्शंस जो हैं वो पेड वर्जन में हैं, कुछ अनपेड वर्जन में हैं, आप चेक कर लीजिएगा। अभी के लिए मैं जानती हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अनपेड वर्जन में है, ऐसे टाइप भी अनपेड वर्जन में। आई थिंक फिल इन द ब्लैंक्स भी, येस फिल इन द ब्लैंक्स भी अनपेड वर्जन में है। तो चलो एक फिल इन द ब्लैंक्स बना लेते हैं। राइट, और ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। अब एक और क्वेश्चन, अच्छा पॉइंट भी सेट कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये 1 पॉइंट का ही रखते हैं चलो। और अब मैं ले लेती हूँ ऐसे टाइप क्वेश्चन, और ऐसे टाइप क्वेश्चन में अगेन मैं क्वेश्चन दे रही हूँ राइट अ प्रोग्राम, राइट अ फंक्शन कर लेते हैं अब की बार। पाइथन
to input, sorry, to accept a number and return true oblique false if the number is even oblique odd. फाइन, एक क्वेश्चन मैंने ये बना दिया. आई कैन ऐड एज मैनी क्वेश्चंस एज आई वांट. और यहाँ पर भी आप जैसे इसको मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लिया, इसको ऐसे टाइप ले लिया, किसी और को मैं मल्टीपल चॉइस लेना चाहूँ तो इट डिपेंड्स अपॉन मी कि मैं क्या चाह रही हूँ. ठीक है, अभी हम चलो 2 ही क्वेश्चंस का टेस्ट बनाते हैं. फाइन, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब मैं लेती हूँ, एक मिनट, सॉरी, या कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर मैं लेती हूँ तो एक डिसएडवांटेज यहाँ पर ये है, यू कैन नॉट ऐड इमेजेस टू योर क्वेश्चन. ये सिंपली टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, राइट. इमेजेस कुड बी एडेड आई थिंक इन पेड वर्जन. तो एनीवेज काम तो चल ही जाता है. तो 2 ही क्वेश्चंस हम रखते हैं एंड हेयर ऑल्सो इट इज़ ऑटो सेव्ड, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है. एंड आई एम गोइंग टू पब्लिश द टेस्ट नाउ. जब एक बार आपने टेस्ट डिज़ाइन कर लिया तो आप उसको पब्लिश करोगे, और जैसे ही मैंने पब्लिश बटन पे क्लिक किया, आई एम गोइंग टू गेट दिस लिंक फॉर माई टेस्ट. और ये लिंक मैं शेयर कर दूँगी अपने बच्चों के साथ थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू गूगल क्लासरूम और वॉट एवर मीडियम. शेड्यूल नहीं कर सकते आप टेस्ट को इन द अनपेड वर्जन, फॉर दैट यू नीड टू पे. ठीक है, और ओपन ही रख रही हूँ मैं इसको, लेट इट बी. एंड चलिए अब हम इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेते हैं. तो टाइप योर रोल नंबर, लेट्स से मेरा रोल नंबर है 34. स्टार्ट. माय टेस्ट इज स्टार्टेड. यहाँ पर मेरे को टाइमर डिस्प्ले हो रहा है, कितना टाइम लेफ्ट है. मेरे को एक पेज पे एक ही क्वेश्चन शो हो रहा है. ठीक है, ओके, देन सबमिट. फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गई और इसका मैंने जो भी आंसर दिया एंड आई एम फिनिशिंग. डन हो गया. ये इनकरेक्ट आ गया, सॉरी, मैं ये चेक वहाँ पे मैंने आंसर सेट करना भूल गई थी. दिस इज़ बट करेक्ट. ओके, अब बिकॉज हमने टेस्ट को बुक मार्क कर रखा था तो आई कैन ईजिली एक्सेस इट फ्रॉम माई बुक मार्क्स. बुक मार्क के लिए आप ये 3 बटन्स पे क्लिक करोगे, जो 3 डॉट्स आ रहे हैं, और उस पर बुक मार्क्स पे जाओगे एंड फ्रॉम हेयर यू विल सेलेक्ट द पेज जो आपने बुक मार्क किया था, और यहाँ से आप रिजल्ट्स देख सकते हो. रोल नंबर 34 ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है और उसका जो भी रिजल्ट रहा है यू कैन व्यू इट फ्रॉम हेयर. फाइन, सो दीज आर द 2 tools दैट आई एम यूजिंग टू डिज़ाइन एंड कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट. अगर आपको कुछ और भी मालूम है तो प्लीज़ डू शेयर इट विद मी एंड do subscribe to my channel if you are liking my videos. Give your valuable feedback as comment. Thank you so much.